powered conceptual model building. Right, so I'm just sharing my presentation with you. Please check and let me know, is it my presentation, my slides is visible? Okay, right. So, dear participants, as Prakriti ma'am already given the introductory part of our sessions that we are organizing this particular 2 days workshop under the banner AI Research and Analytics Academia. And the most important objective of this organization or this particular platform is about to give the introduction about the AI, and all must be ready with like whatever they are, the students, company executives, employees, teachers, principal, they must be ready with their next generation with research with AI. Because without this, there is a no survivability, right? So I have taken lots of session under this kind of the particular topic with AI, and many more like completing the conceptual model building and many more things, right? So today I'm going to discuss with you about the new topic, building a conceptual model from the literature and AI plus human workflow, right? So before starting my presentation in a detail, I just want to introduce what is the conceptual model. So dear participant, you just imagine one thing. Suppose you are having a good plot, like आपके पास एक बहुत बड़ा सा लैंड है and you are planning to construct something. आपको वहाँ एक घर बनाना है, कॉलेज बनाना है, कोई और बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनानी है. तो what you will do in beginning, आप क्या करते हैं, हमेशा एक सबसे पहले प्रॉपर उसका मैप आर्किटेक्ट से बनवाते हैं. आफ्टर दैट यू आर डिसाइडिंग कि कहाँ क्या बनेगा, कैसे बनेगा, right? So suppose you are any kind of the PhD research scholar, you are the faculty members, or maybe you are the executive of any company, right? So in that particular situation, या तो आपके पास product है या services है, right? So firstly, you should understand what is the conceptual model for my product. Maybe it is the product or maybe it is the services. So basically, a conceptual model is a visual or theoretical representation that explain how different variable in a research study are expected to be related to each other. Like when we are doing any kind of the research, any kind of the marketing, any kind of the publicity, we are having lots of information available in the market in different kind of the form. So that particular form is known as, in our study, in particular research area, we can say these all are the variables, right? So it is developed from the literature review, theories, research gap, identify the researcher. आप इसको दोनों ही एस्पेक्ट में सोचिए. इफ यू आर अ रिसर्च स्कॉलर देन थिंक इट इज लाइक कि अगर आप कोई भी नया टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, राइट? एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दैट उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप एक मॉडल की फॉर्म में उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, देन यू आर हैविंग द करेक्ट डायरेक्शन विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ द मिस्टेक, और बिना किसी लाइक हेजिटेशन की आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं. एंड देयर इज अ जस्टिफाइड मॉडल विद यू. Or if you are doing something like marketing of any kind of the product, in that case आपको उस प्रोडक्ट के लिए उस प्रोडक्ट के कौन से नए फीचर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, तो अगेन यू आर हैविंग द वेरिएबल, राइट? आपका कॉम्पिटिटर कौन है और उस कंपटीशन को लाइक फाइट करने के लिए और एक अच्छा आउटपुट निकालने के लिए आपको किन किन सोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी. So I am telling both thing of only because of today we are having a participant from the both background. जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास कुछ अच्छी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव भी हैं आज पार्टिसिपेंट्स में, प्रिंसिपल्स भी हैं, टीचर्स भी हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग बोथ काइंड ऑफ द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू कैन टेक और यू कैन अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट? So in other words, I can say a conceptual model is a simplified representation of ideas, variable and concept, and how they are related to each other in a study, theory, or research. Basically, when you are having the complete information about your product and services, and you are having the complete knowledge from where it comes, for where I have to go, what kind of output I need to take, right? So that kind of complete information if you are having, then definitely you will create a good model, and good model will always give you good output, right? Make it sure if your model is correct, it will give you good output of your result of your study. So it helps researchers explain relationship between different factors and provide a visual or theoretical framework for understanding the problem, right? So I just let you know.
अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपने कांसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल एक्चुअली क्या बना, कि एक प्रॉपर लैंड था, उसके ऊपर मुझे अपना मकान बनाना है, कोई कॉलेज बिल्डअप करना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो आई हैव टू प्रिपेयर अ कंप्लीट मैप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइक हाउस का है या होटल, व्हाटएवर यू वांट टू बिल्ड अप। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंप्लीट मैप चाहिए, तो यू विल टेक द हेल्प फ्रॉम द आर्किटेक्ट। तो वहां पर आर्किटेक्ट आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेगा, लाइक कि फ्रंट कितना है आपके प्लॉट के एरिया का, हाइट कितना है, वेट कितना है, सो ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे विल टेक, एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क अबाउट योर रिक्वायरमेंट कि आपको उसमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, जस्ट लेट मी नो, सो अकॉर्डिंगली आई विल प्रिपेयर द मैप कि ये इतना स्क्वायर फीट का होगा, इतना स्क्वायर फीट का होगा। सेम थिंग हैपन इन आवर स्टडी इज वेल, कि जब कोई रिसर्च करते हैं वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल काइंड ऑफ द वेरिएबल, राइट। हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, थ्योरीज पता होना चाहिए, रिसर्च गैप पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उससे रिलेटेड सारे वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। तो जस्ट लर्न दिस थिंग, बेसिकली वी ऑलवेज हैविंग फोर काइंड ऑफ द वेरिएबल, जिसमें फर्स्ट वेरिएबल वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इज मेडिटिंग वेरिएबल, third is dependent variable, and fourth one is moderating variable. Now I'll let you know what it is. Again we are just taking the example. In our yesterday session we have taken the topic role of social media in education, right? Now with the help of this topic I'll let you know what are the basic this four variable in our study. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझिए कि students are doing their study in the classroom, right? We are having lots of students in the particular class, so the students are those who are doing their study. It is the independent variable, right? And suppose teacher came to class और वो वहां पर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, right? So whatever subject they are taking, तो वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो basically this is the mediating variable, because you just understand कि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो इन आवर क्लास वी आर हैविंग 50 स्टूडेंट, but their grasping power, their knowledge, their understanding having the different kind of the capacity, right? So यहाँ पर जो ये वेरिएबल इन्फ्लुएंस करते हैं एक स्टूडेंट की आउटकम को, आउटकम क्या होता है उसका, एग्जाम का रिजल्ट, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, राइट? तो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए हमारे स्टूडेंट इन आवर स्टडी, राइट? उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, कितना वो पढ़ रहा है, कितना वो समझ रहा है, या उसका कैपेसिटी, ये दोनों हमारे हो गए। अंडरस्टैंडिंग हो गया हमारा मेडिटेटिंग वेरिएबल, और उसकी इंटेलिजेंस उसका हो गया मॉडरेटिंग वेरिएबल। अगेन आई एम टेलिंग यू कि स्टूडेंट सब एक जैसे बैठे हैं और टीचर जो है, सॉरी, डिफरेंट काइंड ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। एक ही टीचर सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, पर कुछ स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ जाता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। कुछ स्टूडेंट की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है और कुछ की कमजोर होती है, तो दैट इज नोन एज मॉडरेटिंग वेरिएबल। किसी न किसी रीजन की वजह से वो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके अंडरस्टैंडिंग को, या तो उसका कंसंट्रेशन बच्चे का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, या और कोई रीजन हो सकता है, राइट? सो दिस इज द two kind of the situation where we are having two kind of the variable, that is mediating and moderating. तो उसका जो outcome होगा that is known as the dependent variable. So in any specific situation we must be clear what kind of variable I'm having for my study. So in future accordingly I'll build up my objective, build up the hypothesis, and if you're in the market and trying to build up new product in the market, you must be having all this four kind of the information ki I am the dependent variable, I am having the 2-3 competitor in the market, they are having the extra features in their mobile phones. If you're talking about mobile launching, they are having the extra features in their mobile phones, they are having the good brand name. So that kind of extra features, brand name is a mediating and moderating variable, right? And mobile phone is an independent variable, and the outcome means how much sale you can do in a particular year and how much revenue you can generate is known as your outcome, right? So this is the four variable with the help of you can build up your complete conceptual model, right? So I come to the next. I think, is it clear to everyone? Both kind of participants, please let me know. Meanwhile, as yesterday session I told ki I want feedback, so I'm just having that confidence ki sab sun rahe hain, koi soya to nahi hai. Thank you so much. So I'm just coming to my next part now this is the 5 step about which I'm going to discuss with you. In step 1 we will again discuss about the gather relevant literature. In step 2 we will try to develop the systematic literature summarization. Step 3 we'll discuss about the variable and construct, then map the relationship, and at last 5th step we'll draft our visual framework, right?
सो द फर्स्ट स्टेप इज द गैदर रेलेवेंट लिटरेचर, जिसके बारे में कल हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी थी. द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल फॉर द गैदरिंग द गुड एंड मोस्ट क्वालिटी लिटरेचर इज नॉन एज द पब्लिश इन पेरिश, राइट. सो अगेन आई एम स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर पब्लिश इन पेरिश टूल इटसेल्फ. कल हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं. सो आई लेट यू नो कि किस तरीके से आपको उसका स्टार्ट करना है, राइट. सो आई जस्ट क्लोज इट. I just open new publish in parish, right? So again, those participants who are new in today's session, I just let you know again that kind of window will appear while you are downloading this publish in parish software at your system. यहाँ पर simply Google Scholar का option है, search bar है. You just write whatever topic you are having. So again, I'm writing here role of social media in education, right? Because most important part is that you must be gather the most relevant review of literature for your study area. कोई भी मॉडल बिल्डिंग अगर आपको करना है, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपके मैनेजर का रहा है, ये कंपनीज के साथ जो पास्ट एक्सपीरियंस पॉलिसीज जो रही है, यू मस्ट बी अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट, राइट. Not to worry about this robot kind of information, just give it. So it will take hardly like 2-3 minutes or sometimes few seconds. तो आपकी टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है from the various quality journal only, right? As earlier we got discussed about the journal must be having good reputed kind of content. Like you can see here we are having the publisher Willy Online, Emerald Insight, IEEE, Sal.com, Francis Taylor. So many publishers are here, right? So from this particular list of the article, you need to identify which one is best for my study, right? So from this particular list, suppose I have taken 4-5 article and I'll be open and download it, right? So I think you understood that with the help of this particular publish in parish tool, you will identify your most relevant article and research paper, right? So for now, my study, I have already collected with the help of this publish in parish. Today morning, I have downloaded this 5 papers. So without wasting our so much time, I can show you my further steps, right? Suppose with the help of this publish in parish, I has already showed to you that kind of the information we are having. यहाँ से आप अपने 5, 10, 50 whatever you want, आप यहाँ से अपने most relevant articles को identify कर लीजिए. Again, I am telling you, बिना basic information के, बिना literature के, आप कोई अच्छा मॉडल नहीं बना सकते, right? So suppose I have taken this 5 article which is most relevant to my study, which showing the education reform, social media and education, exploring the role of social media and education, and many more things, right? So my next step is, यहाँ से आपको एक प्रॉब्लम और आता है कि जब आप इस तरीके के आर्टिकल और रिसर्च पेपर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट citation and referencing for those article and research paper, right? कल मैंने आपको गूगल स्कॉलर के बारे में बात करी थी, आज मैं आपको उसका दूसरा यूज बताती हूँ, राइट? सो उसकी हेल्प से आप अपना साइटेशन कंपाइलेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे. So I just let you know, you just go to Google, just type Google Scholar, open the search bar of the Google Scholar and go to your all article and research paper which you have already downloaded. राइट. सो आई कैन शो यू ये 5 आर्टिकल रिसर्च पेपर है जो आज हम लेकर के अपना मॉडल बिल्डिंग पे बात करने वाले हैं. सो सपोज आई हैव टेकन दिस 5 आर्टिकल. यहाँ पर जो आपका टॉपिक है ना, यू जस्ट कॉपी दैट पर्टिकुलर टॉपिक. आपको जाना है अगेन द सेम अपने गूगल स्कॉलर पर, यहाँ अपने उस टॉपिक को कॉपी करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन सर्च. व्हाई वी आर डूइंग दिस स्टेप? बिकॉज वी वांट साइटेशन एंड रेफरेंसेस, राइट? So suppose I have taken this complete information. Now I want the reference for this. So just click on it. You can see while click on this two commas, you will get the referencing style here. MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver, and many more things are available in the different kind of the referencing style. It is up to your guidelines कि आपको कौन सा वाला use करना है. Suppose right now I'm using this APA. Just move to your any kind of the Word file. Just open it and just paste it. So I just let you know all these steps while you're preparing any kind of the model for your study. You must be having all the information in the form of citation, references, content, objective, everything must with you, right? Suppose this is the second one paper which I have already opened. I'm just
copying this particular topic so I can prepare it for my references. Right, again I move on my referencing style, go to the Google Scholar and just copy your reference style. So you are having that particular article, just click on this commas, just copy this APA reference style and just move on your particular Word file and just paste here, right? So you can see I have done this process and you're already aware about that kind of thing, right? So another tool, if suppose sometime Google Scholar is not working properly and you want some else, because thousands of referencing style software are nowadays available, but it is up to you which one you think that is the best and giving the most relevant or without making any mistake kind of the referencing style, right? So I suggest you nowadays Zotero Bib is working very well. It taking without any information from your side, like you don't need to log in it, right? It is completely free online tool that helps you find build a bibliography instantly without creating an account or installation software, right? So what you need to in that case, just move on Google, just type here Zotero Bib, right? When you will click on Zotero Bib, that kind of window will appear. Just open it for your reference. I just share with you a chat box, so if you want you can try with me. So where is the option of chat box? This one, right? So I have just paste Zotero Bib here, right? So what you need to do, again the same thing, must move on your paper. You just copy that particular title, यहाँ से आपने टाइटल को कॉपी करेंगे and just move to Zotero Bib. Zotero Bib में आपको जाना है, right? And paste your title here. Here you can type your URL address of that any kind of the paper, ISBN number आप उसका यहाँ डाल सकते हैं, DOI you can paste. So lots of information are there, but we will do only the title of that paper, right? Just click on cite. It will identify from all the sources which is available on the internet, और ये आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको कंपाइल करके इन द फॉर्म ऑफ बिब्लियोग्राफी और या रेफरेंसेस आपको शेयर कर देगा. सो विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक इट विल गिव यू द कंप्लीट बिब्लियोग्राफी, बिकॉज जब भी आपको इन्फॉर्मेशन अपने बॉस भी देंगे, बीइंग अ एम्प्लॉयज एंड व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, तो आपको उसका बेस देना पड़ेगा, right? So this is the best way to preparing that kind of the referencing style. So it is asking that is it the conference paper? Yes, of course it is a conference paper, or maybe in the form of paper. So I am just click on it. While you will click on it, it will ये कह रहा है कि already duplicate, like I have already done this kind of the process. So it's asking कि ये वाला information already available है. You can see what was my author of that paper. यहाँ है Jambal Abdul Nasir Ansari and Nawab Ali Khan, right? So I just move on that. Nawab Ali Khan, Sharma Aarti, exploring the role of social media, fostering of this, right? That was my paper, right? I can show you again. I just delete this complete bibliography so you can check it. Again, I just click on it. I just show you one time so you can try with it. Again, मैंने उस टॉपिक को यहाँ पेस्ट कर दिया और क्लिक कर दिया साइट पर. So you can check, it will completely prepare and give the reference in the particular format without making any mistake. So Google Scholar, Zotero Bib, both are the tool with the help of you can create that kind of the thing, right? You just click on it. Now you can see complete information is given here. Again, you can paste second topic, then third topic, then fourth topic, then it will compile your complete reference style here, right? Just minded this thing कि एक बार में एक ही टाइटल आपको यहाँ पर कॉपी करना है. आप ये सोचते हैं कि मैं सारे आर्टिकल्स को एक साथ प्रिपेयर कर लूँ, तो नॉट पॉसिबल. इट विल डेफिनेटली मेक अ मिस्टेक अगर आप ऐसा करेंगे तो, right? So we have done the process of that finding the article with the help of publish and perish, and after that we have done these referencing style with the help of Scholar or Zotero Bib, right? Now coming to the step second, AI powered literature summarization. यहाँ से आपका चैट जीपीटी का रोल बहुत अच्छे से प्ले होता है. बट बिफोर यूजिंग दिस चैट जीपीटी, आई जस्ट लेट यू नो, ब्लाइंड ट्रस्ट चैट जीपीटी पे नहीं करना है, बिकॉज समटाइम इट गिविंग द फेक और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और कितनी बार ऐसे इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती है. What is the correct way to using that kind of the tool and techniques? You need to give the basic information and fundamentals to particular chat GPT, and after that give the prompt for your requirements, right? So what I'll do, I just go to the Google and I just click on chat GPT. I just click on chat GPT. Now you can see
आई एम हैविंग दैट काइंड ऑफ द विंडो विल बी अपीयर. यहाँ पर आपको वो जो आर्टिकल्स आपने अपने लिए निकाले हैं फॉर बिल्डिंग द कॉन्सेप्चुअल मॉडल, वो सारे आर्टिकल आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं. लाइक मे बी हैविंग द लिमिटेशंस, तो आप मोस्ट रेलेवेंट आर्टिकल है 5, 10, 2, 3, बस उन्हीं को ही आप यहाँ पर अपलोड कीजिए. So you just see I have uploaded my all research paper and article which I already taken, right? जैसे ही वो आर्टिकल यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू आस्क टू एक्सट्रैक्ट की वेरिएबल्स, समराइज रिसर्च गैप्स एंड लिस्ट कॉमन थियरीज एंड फ्रेमवर्क फॉर माय अपलोडेड पेपर्स, राइट? So I just move on to ChatGPT, just writing here extract key variables, summarize research gap and list the common theory, right? I just paste in my chat box as well so my dear participants can do this process with me, right? So I just show you, I have given this command, right? You can see I have done this process and just click on this particular arrow. It will take few minutes, but will be prepared the complete list in the form of key variables. All type of variable will be there, as we discuss about the independent, meditating, moderating, dependent variable, and all the common research gap which is possible for our future scope, or like why we are doing that study. Like research gap का meaning क्या होता है? When we people are doing any kind of the research or any kind of the new findings we want, तो बेसिकली हमको ये देखना होता है कि पहले लोगों ने क्या पढ़ लिया है, क्या समझ लिया है और क्या फाइंडिंग्स उनकी थी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि उन्होंने कहीं कुछ कमी छोड़ी है, तो दैट पर्टिकुलर ब्रिज नीड टू बी बिल्ड अप. तो जो हम नया करने जा रहे हैं और जो पहले लोगों ने किया है उसके बीच में गैप होता है जिसको हम बोलते हैं रिसर्च गैप. सो बेसिकली उस गैप को कवर करने के लिए हम कोई नया टॉपिक उठाते हैं, लाइक उसी से रिलेवेंट उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेते हुए हम एक ब्रिज बनाते हैं, उसके अंदर कनेक्टिविटी डालते हैं कि तुमने तुम्हारे स्टडी में यू हैव डन दैट काइंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स, रिस्पोंडेंट ग्रुप एंड एवरीथिंग, बट यू लेकिंग एट दिस पर्टिकुलर एरिया. तो वो एरिया क्या है उनको आइडेंटिफाई करके फिर हम स्टडी को कैरी ऑन करते हैं, राइट? सो बेसिकली अगर आप मार्केटिंग में हैं, कोई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में है, तब भी आप यही करते हैं कि प्रीवियस आपकी कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही थी, उनके पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल थे, कॉम्पिटिटिव कंपनी क्या बना रही है, उनकी सेल्स हमसे ज्यादा क्यों है, तो दोनों के बीच में कंपेयर करके उस गैप को आइडेंटिफाई करके फिर हम मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए नए फीचर्स के साथ और नई स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में आते हैं. तो दैट इज द कॉल्ड रिसर्च गैप, राइट? इन बोथ वे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. Got it? So now you can see I'm having the complete information in the form of like all kind of the variable I have. I am having the information like common research gaps, and I am having all kind of the theories, common theories जो कि इन papers में use हुई है. Because again very important कि क्या strategy पहले थी या previous author ने कौन सी theories की basis पे social media का education में role play के ऊपर बात करी थी, right? तो that kind of information must be with us, right? You can see ये सारी information हमको यहाँ से मिल गई. So what we will do, we will take just copy all this information. Again I'm just assure you कि अगर इस तरीके से information देख करके अगर आप ChatGPT से कुछ पूछते हैं तो वो आपको 90% केसेस में wrong direction में लेकर नहीं जाएगा, right? So I'll just open new file. यहाँ पर मैं अपनी सारी information को copy कर देती हूँ. Now you can see I'm having all the information with the help of AI tool. I am having the independent variable. I just show you. So it must be look like good. Independent variable मेरे पास है, meditating variable मेरे पास है. I just prepare the table for it, right? Dependent variable मेरे पास है जो कि हमारा outcome होने वाले हैं. Monitoring variable जो कि control करेंगे study को, वो variable हमारे पास है. Common research gap like lack of integrated conceptual model की कमी थी. उन्होंने सारे डिफरेंट वेरिएबल के बारे में बात करी, लेकिन कुछ ने मेडिटिंग को मिस किया, कुछ ने मॉडरेटिंग वेरिएबल को मिस किया. तो दैट काइंड ऑफ रिसर्च गैप इट हैज बीन आइडेंटिफाइड, राइट? लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन और मेडिटिंग वेरिएबल, किसी भी स्टडी को समझने के लिए उसके मीडिएटर जो होते हैं दैट इज नॉन एज मेडिटिंग वेरिएबल, उनको जानना भी जरूरी होता है. सपोज आई हैव डन अ वेरी गुड प्रोडक्ट, लाइक मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया. अब मेरे जो सेल्स करने वाले बॉयज हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स को कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज गैप. लाइक वो मेरे मीडिएटर है, मेरे मेडिटिंग वेरिएबल है जो कि मेरी क्वालिटीज को आगे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. सेम थिंग हैपन इन द रिसर्च एरिया ऑल्सो कि जो भी मेडिटिंग वेरिएबल है, लाइक हम ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है स्टूडेंट का उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, लेकिन बीच में कुछ तो है
लाइक नॉलेज शेयरिंग किस एस्पेक्ट में हो रहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग उनकी कैसी है, स्टूडेंट एंगेजमेंट कितना है सोशल मीडिया के साथ. अगेन लुक लाइक यस्टरडे वी गॉट डिस्कस कि एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है या उसके यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड कल्चर पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको दिया गया है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए. एज वी पीपल आर डिस्कसिंग ऑन गूगल मीट एंड शेयरिंग आर नॉलेज विद ईच अदर, राइट? तो वी आर positively using that kind of the tool and technique. But few students are using like Facebook or another kind of the sources like Insta and many more things. तो स्टडी से डाइवर्ट होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो देख तो पॉजिटिव रील्स रहे रिलेटेड टू देयर स्टडी ओनली, लेकिन सम टाइम दे डाइवर्ट, कोई ऐड आ गया, कुछ और दूसरी रील्स देखने लगे तो उसी में आगे निकल गए. तो दैट काइंड ऑफ द कंट्रोल ऑलवेज नीडेड, राइट? सो दैट इज नोन एज द मॉडरेटिंग वेरिएबल. डिजिटल लिटरेसी कितना है, कितना देखना है, इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी कितना है, टीचर का सपोर्ट क्या है, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, दैट आर द मॉडरेटिंग वेरिएबल जो उस स्टूडेंट को कंट्रोल करते हैं. इसी तरीके से मार्केट में भी कि अगर आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है और आपका कंप्यूटर की प्राइस कम है, सेम फीचर्स अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल हो जाएगा. आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि यस आई एम हैविंग द करेक्ट प्रोडक्ट, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आई एम हैविंग द करेक्ट मेन हु इज सेलिंग माय प्रोडक्ट, बट दैट पर्टिकुलर मेन मिडल मैन जो है वो आपको कन्वे कर रहा है कि सेम प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, हमसे कम प्राइस में है और सेम फीचर्स हैं. तो आपका मिडल मैन भी करेक्ट है, मॉडरेटिंग वेरिएबल भी करेक्ट है, लेकिन मॉडरेटिंग वेरिएबल में आपकी गड़बड़ है कि जो आप इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा रहे हैं उसमें समहाउ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी लेकिंग और प्राइस ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो अगेन द डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके हैं वो आउटकम्स, आपका रिजल्ट बच्चे का कैसा रहा या मार्केट में आपने सेलिंग कितनी करनी, राइट? सो दैट काइंड ऑफ द गैप आइडेंटिफाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ लाइक वेरिएबल्स के साथ उसने दिया है. एंड कॉमन थियरीज जो कि पॉसिबल है हमारे स्टडी के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कंपाइल्ड है, राइट? सो वी जस्ट कम टू द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया की वेरिएबल को, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. रिसर्च गैप पे हमने बात कर ली और कॉमन थ्योरीज भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सोशल थ्योरी ली थी, कॉग्निटिव थ्योरी ली थी या कुछ और थ्योरीज लेकर उन्होंने कंसेप्ट को समझाया, तो वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब बारी आती है जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली उसको एक बार हम अपने अकॉर्डिंग स्क्रूटनी कर लेंगे. लुक, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट सेल करते हैं, वी मस्ट बी फोकस ऑन आवर ऑब्जेक्टिव ओनली. तो हमारे ऑब्जेक्टिव में कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल होते हैं एट ए टाइम. हम एक साथ बहुत सारी चीजों को लेकर नहीं चलते हैं. सो वी मस्ट बी जस्ट डू द स्क्रूटनी ऑफ दोज वेरिएबल विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर माई स्टडी पर्पज, राइट? सो यू जस्ट इमेजिन कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी ये सारी मैंने इसमें से स्क्रूटनी करके अपने लिए एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया है. जस्ट शो यू, दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन where I have the information in the form of key variable. All independent variable lists are here. Mediating variable, moderating variable, dependent variable. This is the whole other research gap. Theories which has been used by the previous author by the name and year. All have done, right? So the next step is that you must to log in ChatGPT image generator because you want to build up the model, right? So in that case, must go to ChatGPT. यहाँ हम जाते हैं. यहाँ एक ऑप्शन और होता है, जस्ट क्लिक ऑन मोर, राइट? सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है मोर में इमेजेस. सो जस्ट क्लिक ऑन इट. while you are having that kind of the window will be there. आपको यहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स थे, I just show you lots of already opened, right? So यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स थे इन द फॉर्म ऑफ कंपाइलेशन, मैं इन सारे ही वेरिएबल को, मेरी थियरीज, मेरा रिसर्च गैप और मेरी वेरिएबल, इन सबको मैं कॉपी कर देती हूँ इन माय चैट जीपीटी इमेज. यहाँ पर मैंने इनको कॉपी कर दिया. कॉपी करने के बाद आई जस्ट गिव टू प्रॉम्प्ट, राइट? सो मेरा जो प्रॉम्प्ट होगा वो ये होगा, विजुलाइज दिस फाइंडिंग इनटू क्लियर डायग्राम फ्लो चार्ट, राइट? या फिर आप इसको चाहे तो कंप्लीट ले सकते हैं. सो आई जस्ट मूव ऑन इट. यहाँ पर डॉट 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 करके आप अपना जो प्रॉम्प्ट देना है वो यहाँ पर आप दे दीजिए, राइट? इट just creating the image for you. Meanwhile, I just shared that prompt with you. Move on this. So just see, sketching it out. थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा while it preparing model for you, because जब हमने उसको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी और जो काम हमको करना था, लाइक कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कौन से वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को बाकी वेरिएबल की वजह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट?
तो एक कनेक्टिविटी बनानी होती है. सो विद द हेल्प ऑफ गिवन आर फोकस्ड वेरिएबल, उसको लेकर के जस्ट प्रिपेयर दैट कंप्लीट मैप फॉर यू. अगेन टेलिंग यू कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो उसको अपनी स्टडी में यूज कर सकते हैं. नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं. आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है वेरिएबल्स के बीच में, कहाँ काम ज्यादा करने की जरूरत है, and many more things, right? So it will take some time definitely because image बनाने में थोड़ा सा समय लगता है. Meanwhile I just show you. Okay, anyways I just show you कि ये इस तरीके से आपको इमेज बना करके दे देगा. You can see जहां पर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पूरी लिस्ट होगी, इसके बीच में मॉडरेटिंग और मेडिटिंग वेरिएबल की भी लिस्ट होगी. ये सारे वेरिएबल्स मिलकर इन्फ्लुएंस करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को, जिसमें आपके स्टूडेंट की, आपके वार्ड की एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी, लर्निंग इफेक्टिवनेस होगी, स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन होगा, एंड मेनी मोर थिंग. और उसके साथ ही वो सारी थियोरीज जो इन सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करती है बाय द वे, राइट? सो वो सारी थियोरीज का फाउंडेशन आपका यहाँ पर क्लियर होगा और रिसर्च गैप यहाँ पर होगा, राइट? टुडे मॉर्निंग आई प्रिपेयर्ड दिस डायग्राम फॉर यू. आई जस्ट शो यू. ये यहाँ से भी हम कॉपी करके मैं आपको बता सकती हूँ. ये प्रिपेयर तो हो ही रहा है, ऑलमोस्ट डन. यू कैन सी. So this is, I just download this so it will be more visible. Right now you can see. Now you can see how beautifully it has prepared. अब इसको हम एक कंप्लीट मॉडल करेंगे, कहेंगे ब्लूप्रिंट कहेंगे किसी भी नए स्टडी एरिया के लिए. हियर यू कैन सी आई एम हैविंग माय सेलेक्टेड वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं? सोशल मीडिया की यूजेज की, लाइक कितना फ्रिक्वेंट यूज कर रहा है, कितना टाइम उसके ऊपर लगा रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू सोशल मीडिया ले रहा है, लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, ब्लॉग्स, विंग्स, एक्स्ट्रा. सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. सो उसमें से वो कौन सा ऑप्शन को ऑप्ट करने वाला है, प्लेटफॉर्म का टाइप कैसा है, मोबाइल डिवाइसेस, आईसीटी टूल्स, कितना फीचर्स अवेलेबल एंड एवरीथिंग, राइट? सो इन सारे लिस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ स्टूडेंट का एंगेजमेंट कितना है, कितने घंटे बैठ रहा है, नॉलेज शेयरिंग बिहेवियर उसका कैसा है, कि पढ़ने की पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूज कर रहा है वो मोबाइल फोन या आपका इंटरनेट या लैपटॉप, और उसके साथ डेमोग्राफिक वेरिएबल, उसकी एज कितनी है, उसका जेंडर क्या है, उसकी डिजिटल लिटरेसी कितनी है. तो मेडिटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल के थ्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर. सो इट्स शोइंग दैट रिलेशनशिप आल्सो, राइट? मैं आपको आगे और बताऊंगी कि किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्डअप होती है, राइट? सो दिस इज द कंप्लीटली फ्लो चार्ट अबाउट दैट आर वेरिएबल. द नेक्स्ट पार्ट इज रिसर्च गैप. वो सारा रिसर्च गैप भी यहाँ पर डेकोरेटिव फॉर्म में इसने एक्सप्लेन कर दिया है और थियरीज भी यहाँ शो कर दी है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन प्रिपेयर a beautiful diagram like I have prepared this one. हर बार ही आपको कुछ नया देगा, so you can try that. Again this, like I can prepare that kind of flow chart also, that this kind of also, right? So I can show you. ये मैंने ChatGPT से ही बनाया है and definitely you can use in your study. लेकिन अगर आपको ये नहीं यूज करना है तो आई एम हैविंग द अदर ऑप्शन फॉर यू. आई जस्ट शो यू कि जो मैंने प्रिपेयर किया है. Even you can also try. I just share this information with you in chat box. So if you want to prepare by yourself, you can try it. Right? So you can see it's showing 2 images for us. इसने 2 images बनाई हैं जो अभी मैंने उसको URL एड्रेस दिया है मेरा. So you can see that kind of beautiful decorative diagram it will be prepared for our study. Right? So we have done this process with the help of ChatGPT, right? Now another concept, यहाँ पर हमने एक complete flow chart बनाया है, conceptual model अभी हमने नहीं बनाया है. So we are coming on step 3rd. Again I'm telling you कि जब आप एक प्लॉट लेकर एक मकान बनाते हैं तो आपको उसके लिए रॉ मटेरियल देखना होता है, ट्रांसपोर्टेशन देखना होता है कि मटेरियल कैसे आएगा, आपको उस पर्टिकुलर लैंड के लिए पूरा मैप चाहिए कि आपको कहाँ किचन बनाना है, कहाँ रूम बनाना है, राइट? सो यू हैव आइडेंटिफाइड ईच एंड एवरीथिंग. ये सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन अभी मकान बना नहीं है, राइट? सो वी आर कमिंग टू द स्टेप 3rd, आइडेंटिफाई वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्ट. अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे जो मेन बेसिक वेरिएबल हैं जो हमने स्टडी में बिगिनिंग में डिस्कस किए थे, दैट वाज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मेडिटिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल. यहाँ पर आपको उन सारे वेरिएबल को आपकी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करना है, आपकी चॉइस. किचन कितना बड़ा होगा, रूम कितने बनेंगे, हॉल कैसा होगा, एवरीथिंग इट इज अप टू योर चॉइस, राइट?
So accordingly, in our study, we have just decided our independent variable. Social media and its ICT tools are independent variable for us. What are the dependent variable? कि social media use कर लिया तुमने, coaching भी कर ली, तुम school भी चले गए, लेकिन what's about your performance? Ultimately तो मेरे result चाहिए. So academic performance and learning outcome will be our dependent variable. And in the connection of dependent and independent, like you just understand, दो वेरिएबल के बीच में उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई ना कोई जरूर होता है, राइट? सो वी कैन से मेडिटिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल. तो यू कैन सी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कनेक्ट करने के लिए मेडिटिंग वेरिएबल होते हैं जो कि शो करते हैं व्हाई एंड हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल. सो स्टूडेंट का एंगेजमेंट और उसका नॉलेज शेयरिंग का तरीका, ये उसके दोनों मेडिटिंग वेरिएबल है, राइट? और उसी स्टडी के लिए मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या बनेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल मोर और लेस. लाइक अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझते हैं. एक टीचर है पढ़ाने वाला, क्लास में 50 स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अलग अलग है. अलग अलग क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोलिंग वेरिएबल. वाई? कुछ की कैपेसिटी क्लास में बैठकर ही सब ग्रास्पिंग की होती है, वो स्ट्रांगली अंडरस्टैंड कर लेता है हर चीज को. कुछ स्टूडेंट घर जाकर भी 10 बार पढ़ते हैं लेकिन वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं. तो इट इज डिपेंड्स मोर और लेस व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी स्टूडेंट्स आर हैविंग. अंडरस्टैंड वो भी कर रहा है, मेडिटिंग वेरिएबल उसका भी है, लेकिन जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है. तो जो कैपेसिटी है वो मॉडरेटिंग वेरिएबल है, right? In our case, we are having the demographic information on institutional support. Now coming to the next part. अब यहाँ पर हमें क्या करना है? In this third step, we need to build up our conceptual model. अब हम इस conceptual model पर आए हैं जहाँ पर हमें command देना है कि from this summarized list of the dependent, independent, meditating, moderating variable, we need to just given like human judgment here कि हम पूरा उसको समझ करके scrutiny कर लेंगे और हमारे पास ये कुछ वेरिएबल जो है वो सिलेक्टेड है कि ये अब वेरिएबल जो मुझे फर्दर कैरी ऑन करना है अपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल बिल्डिंग के लिए, जिसको लेकर मैं अपना कंप्लीट करूंगा रिसर्च या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जो भी उसको मैं कंप्लीट करूंगा, राइट? सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस इज लिस्ट ऑफ माय ऑल वेरिएबल कि ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट कॉपी ऑल दिस वेरिएबल, राइट? इनको कॉपी करेंगे वापस से. अगेन आप चैट जीपीटी में जाएंगे, यहाँ अपने सारे वेरिएबल्स को हमने कॉपी कर लिया with the help of this of course. यहाँ हम जाते हैं और यहाँ हम उसको कॉपी कर देते हैं, राइट? कॉपी करने के बाद यू नीड टू गिव द प्रॉम्प्ट. आपको उनको मैप करना है इस रिलेशनशिप को, जो सारे वेरिएबल हमने दिए हैं ना, दैट इज आवर स्टेप नंबर 4. जो हमारे चारों वेरिएबल है यहाँ पर हमें उनको प्रॉम्प्ट देना है, मैप द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल इनटू कॉन्सेप्चुअल रिसर्च फ्रेमवर्क, राइट? जस्ट मूव ऑन दिस. यहाँ पर जो हमने लिख दिए हैं सारे वेरिएबल, इस पे हमको जस्ट गिव द कमांड कि मैप दिस रिलेशनशिप, राइट? एंड आई जस्ट शेयर विथ यू दिस प्रॉम्प्ट. So if you want to use with me, you can build up this. So it again will take few seconds and I just show you. यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि map this variable which you get from the chat GPT, आपने उसको सारा कमांड दे करके स्पेसिफिकली वो कंटेंट निकाला जिसका फ्लो चार्ट या डायग्राम आपको बनाना है. बट डोंट स्किप ह्यूमन जजमेंट हियर. अगेन आई एम टेलिंग यू कि चैट जीपीटी तो आपको जितने भी वेरिएबल सब निकाल कर देगा, बट इट इज अप टू योर ऑब्जेक्टिव स्टडी एरिया कि आप कितने वेरिएबल को कौन से वाले पर्टिकुलर वे में आप लेना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट में ये है, डिपेंडेंट में ये है, वो आपको सारे बता रहा है. बट जस्ट डू दिस स्क्रूटनी कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे स्टडी एरिया का कंसेप्ट नहीं है, तो जस्ट डू दिस स्टडी. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर डोंट स्किप ह्यूमन जजमेंट हियर, राइट? सो मे बी द प्रोसेस इज डन. It's just doing the finishing and adding final touch. मीनवेल आप मुझे ये तो बताइए कि जो मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, समझ में आ भी रहा है कि नहीं? प्लीज गिव फीडबैक मीनवाइल. प्रकृति मैम थैंक यू सो मच. शिल्पा मैम थैंक यू. वीणा जी थैंक यू. अदर सब ऑल पीपल आर लाइक स्लिपिंग. समझ नहीं आ रहा, बट आई लेट यू नो द इन अनदर वे. वेरी इफेक्टिव. थैंक यू सो मच. प्रेमा जी, ओ वाओ दैट्स ग्रेट. ओके राइट गॉट इट कि आप लोग सब जगे हुए हैं. So I just show you. Yes, you can see that is our beautiful conceptual model. यहाँ अगेन मैं इसको डाउनलोड करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. You can see
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पूरी लिस्ट यहाँ पर है, मेडिटिंग वेरिएबल यहाँ है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और मॉडरेटिंग वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पर यू कैन सी दैट पर्टिकुलर एरोज, ये बता रहा है कि अगर आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करनी है तो जो वेरिएबल डायरेक्ट यू कैन से जो बोल्ड लाइन में एरो बनी है वो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करती है। लाइक यहाँ पर हम हाइपोथेसिस क्या बिल्डअप कर सकते हैं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल एंगेजमेंट और स्टूडेंट एंगेजमेंट ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज ऑफ सोशल मीडिया। लाइक यू कैन से कि सोशल मीडिया की यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का एंगेजमेंट कितना है, अगर आपको एक सब हाइपोथेसिस बनाना है, राइट। बट हम हाइपोथेसिस बनाएंगे अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। सो यू कैन से देयर इज अ सिग्निफिकेंट यूज ऑफ सोशल मीडिया while students are engaging themselves for the better academic performance। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हम लेकर आए, राइट। सपोज हम बात करते हैं नेटवर्किंग की, तो यू कैन बिल्ड अप द हाइपोथेसिस कि in networking we are having the significant role towards the knowledge sharing by the students on their learning outcomes। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये एरो हमें हाइपोथेसिस बनाने के लिए या मार्केट में स्ट्रेटजी को बनाने के लिए एक डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कॉन्सेप्चुअल मॉडल आपकी पूरी स्टडी पूरी रिसर्च की कहानी कह देता है। तो बेसिकली यू कैन यूज दिस मॉडल इन योर एनी काइंड ऑफ द रिसर्च पेपर, थीसिस, थियरी, आप उसको आराम से वहां पर यूज कर सकते हैं। आई जस्ट शो यू, आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर यू। इस तरीके के कुछ डायग्राम्स मैंने आपके लिए रेडी किए हैं। तो इस तरीके से आपके पास फ्लो चार्ट बनकर आएगा जिसको हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहते हैं। आप इसको आराम से अपनी स्टडी में यूज कर सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ फ्लो चार्ट वी कैन प्रिपेयर। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक दूसरे तरीके से फ्लो चार्ट बनाना सिखाती हूँ। पैराफ्रेजिंग रिक्वायर्ड। ज्योति दशोरा मैम, आपको कॉन्सेप्चुअल मॉडल में कोई पैराफ्रेजिंग करनी ही नहीं है। आप अगर कोई इमेज जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स एंड टेक्निक जिसमें कि कंटेंट आपका होगा, तो उस केस में आपको कहीं प्लेगरिज्म का इश्यू नहीं आएगा। नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ द पैराफ्रेजिंग इन दैट पर्टिकुलर केस। बिकॉज अगर आप चैट जीपीटी से कहते कि जस्ट बिल्ड द कॉन्सेप्चुअल मॉडल बिल्डिंग फॉर माय टॉपिक दैट इज रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड एजुकेशन, तो इन दैट केस वो जो भी बना करके देता ना वो आपके लिए प्लेगराइज्ड होता। बट इन आवर केस वी हैव गिवन द पेपर सोर्स, उसको पेपर सोर्स हमने दिया, कमांड हमने दिया, और उसके बाद भी जितने वेरिएबल्स उसने हमको दिए हैं हमने सारे नहीं लिए हैं। हमने हमारे ऑब्जेक्टिव स्टडी के अकॉर्डिंग उसमें से स्क्रूटनी किया है। स्क्रूटनी करने के बाद उसने हमको इमेज बना के दिया है, तो इमेज हमने बनवाया है, उससे नहीं बनाया है, तो वो आपके लिए प्लेगरिज्म में नहीं आएगा। हैव ऑलरेडी टेस्टेड, डोंट वरी अबाउट दिस। इज इट ओके? आई थिंक, इज इट ओके ज्योति मैम? Okay, yes, okay, yes, got it. Yeah. Okay, thank you so much. So we are coming to the next way of building this conceptual model. The next particular AI tool which I'm going to discuss with you, the name of this tool is Draw.io. Right? So आपको इसमें करना क्या है? Again, Draw.io में आपको है तो ChatGPT का ही लेना पड़ेगा because you are not from computer science background. सो आपको अगेन आई जस्ट लेट यू नो, सिंपल अपने को गूगल में जाना है, लिखना है draw.io, right? I just discard all this thing. I want to prepare new, I just prepare new file, just preparing new, cancel all, right? I'm just preparing open form, this untitled, create, राइट मेरे पास जब आप ड्रॉयो को ओपन करेंगे तो इस तरीके का कंप्लीट ब्लैंक एक पेज आपके पास आ जाएगा। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। ये ड्रॉयो तो आप आराम से यूज कीजिए रिसर्च पेपर में, आर्टिकल में, थीसिस में, ICSR के प्रोजेक्ट्स में, यूजीसी के नए प्रोजेक्ट में, फेलोशिप में आप आराम से यूज कीजिए, कहीं कोई इशू नहीं है। इट इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेड एवरीवेयर, राइट? सो यहाँ आपको करना क्या है, आई जस्ट लेट यू नो, आपको चैट जीपीटी से कहना है कि चैट जीपीटी टू क्रिएट द मर्मेड कोड फॉर ड्रॉयो टू डेवलप दिस कॉन्सेप्चुअल मॉडल फॉर दीज वेरिएबल। जो हमारे वेरिएबल थे जो हमने सेलेक्ट किए थे हमारे स्टडी के लिए, आपको चैट जीपीटी के पास जाना है और उसे कमांड देना है, राइट? अगेन आई हैव पेस्टेड माय ऑल वेरिएबल हियर, या हमने सबको पेस्ट कर दिया। उसके बाद जस्ट मूव ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट, क्रिएट मर्मेड कोड for Draw.io to develop the conceptual model for these variable, right?
ये हमने हमारा प्रॉम्प्ट जो है चैट जीपीटी को हमारे वेरिएबल्स के साथ में शेयर कर दिया एंड जस्ट क्लिक ऑन इट. You need to keep the patience with you while it will generating. ये मॉडल हमारे पास है. So you can see ये मरमेड कोड लाइक बेसिकली क्या होता है कि while we are preparing that kind of the conceptual model, या तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से हेल्प प्ले करके कोडिंग प्रिपेयर करके और इस तरीके का मॉडल आप बनाएं जिसमें कि डायरेक्शन वेरिएबल और सारी चीजें आपको बता रहा है, राइट. और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आज दी मरमेड कोड, पर अगेन सेम वेरिएबल आपने दिए हैं इसलिए वो आपका जो कंटेंट है उसी से ही मरमेड कोड उसको बनाना चाहिए. मरमेड कोड बेसिकली kind of coding, right? So what I have done, I have given this particular prompt and with my variable it has generated this mermaid code for me and just copy on this, like यहाँ पर आपको कॉपी करना है. जैसे ही कॉपी करेंगे टिक आ जाएगा राइट कि हाँ मैंने कॉपी कर लिया. जस्ट मूव टू योर draw.io, यहाँ आपको जाना है. यहाँ जाकर आपको एक छोटा सा प्लस का साइन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है. देन जस्ट कम टू डाउन, यहाँ देखिए मरमेड कोड लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट करना है. आई लेट यू नो दिस स्टेप 2-3 टाइम्स सो यू विल बी अंडरस्टैंड. जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे, इट आस्किंग अबाउट कि डायग्राम बनाना है, इमेज बनाना है, तो आई एम जस्ट आस्किंग कि डायग्राम बना दो एंड जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट. नाउ यू कैन सी ये डायग्राम अगर आप सोचते सारे पेपर्स के वेरिएबल वगैरह सब कुछ निकाल करके तब भी आप नहीं बना सकते. आई एम डैम श्योर, बिकॉज यू कैन सी इसने रिलेशनशिप के साथ सारे वेरिएबल को क्लियरली मेंशन किया है कि दिस इज मॉडरेटिंग वेरिएबल. ये सारे मॉडरेटर है मेरी स्टडी के, ये मेरे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, राइट. ये मेरे मेडिटिंग वेरिएबल है और ये मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट. सो आप इसको यहाँ पर जाकर सेव भी कर सकते हैं. सेव इज राइट, मैं इसको कोई भी नाम दे देती हूँ, सपोज 1 2 3. आई हैव गिवन द नेम. लोकेशन आप इसको बता दीजिए कहाँ सेव करना है. सो राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग द लोकेशन. डाउनलोड में सेव कर लो एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके. जैसे आप इसको सेव करते हैं यू कैन सी इमेज फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में आपने इसको किया है, सम इश्यू विद इट, जस्ट क्लिक ऑन इट, चूज अनदर ऑप्शन फ्रॉम द कंप्यूटर. इट्स नॉट शोइंग इमेज ऑप्शन. एनीवेज ये आप जब ओपन करेंगे इमेज का ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा है. चूज अनदर अपॉन योर कंप्यूटर. पिक्चर और इमेज में ये आपको डेफिनेटली ओपन कर देगा. डॉक पे वी कैन ट्राई कॉमन फाइल्स HP. जस्ट ट्राई टू ओपन इट. और डॉक में उसको ओपन कर लेते हैं. मे बी सम इशू, सपोज जस्ट वन. एनीवेज नहीं ओपन हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं. जस्ट मूव ऑन सेव, राइट. सेव इस पे आप इसको क्लिक करेंगे. आई एम जस्ट गिविंग एनी कमांड लाइक 4-5 मैंने इसको नंबर दे दिया है. एंड टाइप मेरा XML है क्योंकि इसको हम आराम से यूज़ करना चाहते हैं. डाउनलोड में ये सेव हो जाएगा एंड जस्ट सम इशू विद इट. एनीवेज अगर आप इसको डायरेक्टली भी डाउनलोड करेंगे तो जब भी आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना ये यहीं से आपको फाइल ओपन कर देगा. इस ऑप्शन को भी आप सेव कर सकते हैं. मैं आपको आपके चैट बॉक्स में शेयर करके बताती हूँ. अपने सिस्टम पे आप ओपन कर लीजिए क्योंकि मेरे शायद कुछ वायरस का इशू हो रहा है, दैट्स वाई किसी इमेज को ओपन नहीं कर पा रहा, राइट. आप इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा सिस्टम पे, इट विल डेफिनेटली ओपन. और जब ओपन होगा तो वो ऐसा दिखेगा, इस तरीके का डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट होगा, राइट. अगेन आई शो यू द सेम स्टेप्स कि इस तरीके से अगर आप वेरिएबल्स को बनाते हैं, सॉरी कॉन्सेप्चुअल मॉडल बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे बना हुआ डायग्राम हर पेपर में एक्सेप्टेड है. आप उसको यूज करके आराम से अपना पूरा पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं. अनदर फ्यू कोड्स आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. ये कुछ और कोड मैंने प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको draw.io डॉट अच्छे से समझ में आए. आई जस्ट क्लिक ऑन draw.io. मैंने उस पर क्लिक किया है, डिस्कार्ड कर देती हूँ पुराना, राइट. ये मैंने कुछ प्रैक्टिस की थी, राइट. तो जस्ट क्लिक ऑन प्लस साइन, प्लस पे जाना है. अच्छा इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, लाइक मल्टीपल टाइम्स यू कैन यूज. ऐसा नहीं कि 1-2 बार यूज कर ले उसके बाद वो आपसे पैसे मांग रहा है या सब्सक्रिप्शन के लिए कह रहा है. नॉट लाइक दैट. जस्ट मूव ऑन एंड जस्ट मूव टू मरमेड कोड. यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट पेस्ट योर मरमेड कोड हियर. आपको मरमेड कोड बनाना चैट जीपीटी से है, राइट. नाउ यू कैन सी दैट काइंड ऑफ द कंप्लीट डायग्राम विल बी देयर. ये पूरा डायग्राम यहाँ पर बन जाता है ना. अनदर वे आई जस्ट लेट यू नो, दूसरा तरीका भी है इसको कॉपी करने का. आप यहाँ से अपना
स्निपिंग टूल ले लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसके अंदर कोई करेक्शन करना है, कोई चेंजेस करने हैं, तब भी आप आराम से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मेरा डायग्राम पूरा यहाँ पर आ गया है, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मरमेड कोड, अच्छा वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन दिस, कि लाइक मुझे स्टूडेंट एंगेजमेंट को कोई और वर्ड देना है, तो यू कैन जस्ट राइट एनीथिंग। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो स्टिल यू कैन डू, आई जस्ट शो यू। अगर आपको इसका कलर भी चेंज करना है तो यू आर हैविंग ऑल दिस ऑप्शंस, कि आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, उसको हेडिंग बना सकते हैं, राइट। आप उसकी कलर की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी व्हाट एवर चेंज यू वांट यू कैन डू, कि आप इसका पिक्चर का प्रेजेंटेशन और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाह रहे हैं, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद उसको डाउनलोड या स्निपिंग टूल से लेकर के आप अपने पिक्टोरियल फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ये जो हमने बनाया ना, इसी को हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहते हैं, राइट। सो यू कैन सी दैट काइंड ऑफ मॉडल वी हैव प्रिपेयर। इस तरीके से आप बहुत सारे मॉडल बना सकते हैं। दिस विल आर द ऑप्शन व्हिच आई हैव डन, और इसी के थ्रू हमने कुछ हाइपोथेसिस भी बनाई है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दिस वेरिएबल। सो लेट मी नो, इज इट क्लियर यहाँ तक? क्या आप लोगों को समझ में आ गया है? कोई क्वेरी है? बिकॉज वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ टू वेज, एक तो चैट जीपीटी इमेज क्रिएटर के थ्रू हमने मॉडल बिल्डिंग किया है, और दूसरा हमने draw.io से मॉडल बिल्डिंग किया है। दोनों ही एक्सेप्टेड है। चैट जीपीटी कुछ पेपर्स में कहते हैं कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द लाइक डायग्राम और इमेजेस क्रिएटेड बाय चैट जीपीटी, बट इफ यू टेक like mermaid code with the chat gpt and then creating in draw.io, definitely it will be accepted. मेरी जो बेसिकली टीम है, डेफिनेटली मेक इट श्योर कि वो कल से ही पेपर राइटिंग पर लग जाएंगे और बहुत अच्छा पेपर प्रिपेयर कर लेंगे, राइट। सो जस्ट गिव मी द फीडबैक, सो आई जस्ट स्कोप अप विथ माय अनदर स्टेप थर्ड फॉर यू। Animesh sir, thank you so much. Shilpa ma'am, Jay sir, and what's about other all are sleeping? Share some important prompt, ma'am. Definitely I'll share with you, ma'am. Don't worry. Understood, ma'am. Prakriti ma'am, thank you so much. Janki ma'am, thank you. Veena ji, thank you so much. So I think it is like understand कि क्या बनना है, कैसे बनना है. Mega ma'am or Troy is good. Need practice. Moiji, yes, of course. It's always required a practice. Whatever kind of tools and technique I'm going to discuss with you always have needed the practice. बिना practice के आप उन चीज़ों को proficiently use नहीं कर पाएंगे. So make it sure all kind of these tools and technique always required your attention. कि just do practice with me, right? So I just let you know another very beautiful method, conceptual model building by third ways. तीसरे तरीके से बनाते हैं जो कि मेरे लिए most loving है, that is napkin.ai. कल ये टूल हमको डिस्कस करना भी था लेकिन रह गया था बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइमिंग। करना क्या है, napkin.ai में आपको जाना है, अगेन द सेम, गूगल में जा करके napkin.ai आपको लिखना है, जस्ट एंटर। ये napkin.ai मैं आपको चैट में शेयर भी कर देती हूँ। All clear, Shilpa ji, very good, thank you so much. Right, so I'll just show you. Just wait, some issues there. I think some issues there. Task manager, show my screen anyway. Why it's hang. I think it's just wait, it's some issues. Task manager में जाना है, then now I need to just give me a minute. Some issues are there. So snipping tool was already closed. Zoom.com is already closed.
जस्ट गिव मी अ मिनट, आई थिंक सम क्रिटिकल इश्यूज देयर, सो मैं एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके वापस लॉग। No problem, ma'am. Right. Now is my screen is visible? Right. So next is napkin.ai. This is most loving tool for me. ये सबसे अच्छा टूल है और आई कैन अश्योर यू ये यूज करके आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा. वट एवर यू आर फैकल्टी, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, टीचर, एम्प्लॉयज, इट्स यूजफुल फॉर ऑल बैकग्राउंड्स, राइट. सो यहाँ पर आपको करना क्या है, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन napkin.ai. napkin.ai पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का विंडो विल बी अपीयर एंड जस्ट क्लिक ऑन गेट नैपकिन फ्री. यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना गेट नैपकिन फ्री पर. नाउ यू आर हैविंग द ऑप्शंस. न्यू नैपकिन करके आपके पास आएगा, तो आप न्यू नैपकिन पे जब क्लिक करेंगे तो यू आर हैविंग 3 ऑप्शन, बाय पेस्टिंग माय टेक्स्ट, बाय डिस्क्राइबिंग माय आइडिया एंड बाय इंपोर्टिंग अ फाइल, राइट. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कंटेंट है तो वो यहाँ पर इंपोर्ट कर दीजिए, चाहे तो पेस्ट कर दीजिए, चाहे तो आप यहाँ से आइडिया को जनरेट कीजिए, राइट. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट गिव योर ऑन विजन, जो आप कर रहे हैं उसी को आप कीजिए. तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन पेस्टिंग माय आइडियाज, राइट. और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इन डिफरेंट फॉर्म, सपोज मैं आपको उसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज मेरे पास इस तरीके का कोई लाइक कंप्लीट पेपर है या कंटेंट है जिसमें मुझे मॉडल बी बनाना है. जस्ट चेक इट. दिस वन इज नॉट माय फाइल. 2 variables or 4 variables, again this is not my file. I just close this unnecessary files. So I just d2 other matter, like yes you can see this one is a complete paper. ऐसा कोई पेपर मेरे पास है और you may be having some kind of the notes. आपके पास कोई नोट्स है, कोई पेपर है, या आपको मॉडल बिल्डिंग करना है. तो आपको करना क्या है, napkin.ai पे जाना है और अपना जो भी कंटेंट है पेस्ट कर देना है यहाँ पर. आई हैव गिवन द टॉपिक द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन हायर एजुकेशन. ये मैंने ने अपना कंपाइलेशन किया है विद द हेल्प ऑफ मेनी सोर्सेस, पढ़कर समझ कर करके, और मैंने इस तरीके से अपना कंटेंट रेडी किया है. नाउ यू कैन सी ये कितना दिखने में इट्स जस्ट लाइक हैविंग बोरिंग काइंड ऑफ द कंटेंट की यहाँ एक फ्लो में जा रहा है, ठीक है, जस्ट रीडिंग दैट काइंड ऑफ द कंटेंट, राइट. बट द अनदर पार्ट इज दैट कि आई कैन मेक इट वेरी अट्रैक्टिव, राइट. तो इन दैट केस क्या कर सकते हैं, सपोज ये मेरा कुछ कंटेंट है जो कि मुझे दिख रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा बोरिंग सा है, बट आई कैन प्रिपेयर इट इन अ वेरी लाइक विजुअलाइज फॉर्म. पेरा को विजुअलाइज करना इन इम्प्रेसिव वे इज ओनली द ग्रेट थिंग डूइंग बाय द napkin.ai. लाइक napkin.ai क्या करता है, आपकी जो बोरिंग कंटेंट होता है, जो लाइक पैराग्राफ में होता है, लाइनिंग्स में होता है, उसको मोस्ट ब्यूटीफुल वे में आपको प्रेजेंट करता है. नाउ यू कैन सी जो कंटेंट मैंने उसको दिया था उसको मुझे कह रहा है कि आप इसको इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं कि लाइक सोशल मीडिया एजुकेशन में जब यूज करते हैं तो यूट्यूब में भी द प्लेटफॉर्म जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ दी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है. ब्लॉग्स और मीडियम आप ले सकते हैं. तो अगर आपको ये पिक्चराइजेशन अच्छा लग रहा है, पिक्चराइजेशन, तो आप ये यूज कर सकते हैं. अदरवाइज यू मे बी मूव ऑन दिस वन, दिस वन, दिस वन, और इस तरीके के बहुत सारे सोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं जिससे विदाउट वेस्टिंग योर सो मच टाइम यू कैन प्रिपेयर अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, राइट. यू कैन चूज एनी वन. इतने सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है. अगर आपको इसको बिजनेस फ्रेमवर्क की फॉर्म में लाना है तो यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ. it will take hardly like few seconds or it will be generate a very beautiful diagram. You just imagine कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जब हम कुछ नया कंटेंट डिलीवर करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को या रिसर्च पेपर आर्टिकल देते हैं, तो एक बोरिंग सा लाइक हमको कंटेंट दिखता है, लेकिन वाइल वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ द सोर्सेज और उससे हम उसको विजुलाइज करते हैं तो इस तरीके से अच्छे ब्यूटीफुल डायग्राम्स हमारे पास आ जाते हैं, राइट. सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन दिस वन, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं अगेन इट लास्ट द कलर कॉम्बिनेशन ऑल्सो कि अगर आपको ये चाहिए तो कलर कॉम्बिनेशन कौन सा चाहिए. सपोज आई एम टेकिंग दिस वन, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हो इट विल बी सेटल डाउन हियर, ये यहाँ पर आ जाएगा. अगर आप चाहें कि मुझे इसको डाउनलोड करना है, कंटेंट में कुछ चेंज करना है, तो यू कैन टाइप एनीथिंग, लाइक जो आपको चेंज करना है वो आप यहाँ कर सकते हैं. जो भी आप कंटेंट में चेंज करना चाहें यू कैन डू, राइट.
एंड सपोज यू आर सेटिस्फाइड दिस डायग्राम एंड यू वांट फॉर योर स्टडी, आप इसको यूज करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एक्सपोर्ट विजुअल्स. यहाँ पर आपको जाना है, पीडीएफ पर आपको क्लिक करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड. ये डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको आराम से अपनी स्टडी में यूज कर सकते हैं. ये स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, स्पेशली टीचर्स जो नोट्स डिलीवर करते हैं या कोई रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल है. यू कैन सी ये डाउनलोड हो गया. आप इसको आराम से इसका स्नैपिंग टूल से इमेज ले सकते हैं और अपनी स्टडी में यूज कर सकते हैं. जस्ट शो यू अनदर वे. इसी तरीके से सपोज आई एम यूजिंग दिस वन, बिल्डिंग एकेडमिक एंड प्रोफेशनल नेटवर्क. ये मेरे पास कंटेंट है, राइट? तो इस कंटेंट को सिंपली करना क्या है, जस्ट सेलेक्ट दिस कंटेंट और जो स्पार्कल वाला एक आपके पास आइकन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है. While you will click on it, it will create a very beautiful diagram for you. बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है. नाउ यू कैन सी इसने आपको ये सजेस्ट किया है कि जो कंटेंट आप मुझे दे रहे हैं उसको मैं ऐसे विजुलाइज कर सकता हूँ, ऐसे विजुलाइज कर सकता हूँ, राइट? अगर आपको है कि नहीं मुझे कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है तो आप चेंज कर लीजिए. अगर आपको है कि नहीं मुझे और कोई बेटर ऑप्शन लेना है तो आप बैक में चले जाइए वापस, राइट? अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए. अगर आपको और कोई डायग्राम बनाना है तो जस्ट अगेन सेलेक्ट ऑल दिस कंटेंट. यहाँ से आप अपने क्लिक कर लीजिए. आप उस डायग्राम को भी रख सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं. इट इज़ योर चॉइस, बट इट इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव एंड हाईली डिमांडेड नाउडेज इन द इंडस्ट्रीज, कॉलेजेस, स्टूडेंट, रिसर्च, एवरीवेयर. देयर इज नो ऑप्शन कि आप इसे इग्नोर करें. तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना टाइमलाइननेस में या कंपैरिजन में या बिजनेस फ्रेमवर्क में आप इसको आराम से डिलीवर कर सकते हैं. तो दिस इज द वे विद द हेल्प ऑफ वी कैन क्रिएट a very good or beautiful diagram which visualize your content in the form of beautiful pictures, right? So you can see मैंने इसको choose किया. After that asking about the combination in colors कि कौन सा लेना है. Suppose I'm using this one, suppose I'm using this one. क्लिक किया, वो build up हो जाएगा. Just export पे किया और वो download हो जाएगा, right? So with the help of this napkin.ai you can also create a flow chart for your variables. यहाँ पर वापस मैं आपको variables के लिए भी कुछ फ्लो चार्ट या डायग्राम आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं. अगेन मूव ऑन माय napkin.ai. यहाँ पर मैं जाती हूँ एंड जस्ट पेस्टिंग माय कंटेंट हियर, राइट? मैंने कंटेंट अपना यहाँ पर ले लिया है सारा. आई एम जस्ट सेलेक्टिंग ऑल दिस और यहाँ से मैं अपना माइंड मैप बनाना चाह रही हूँ. तो जस्ट क्लिक ऑन इट. Like I'm just telling you, this is the best way. I have searched each and everything. I have taken lots of session. मैंने पहले खुद बहुत स्टडी किया, बहुत सारे सेशन सेमिनार्स अटेंड किए. And after that, I compile all this thing for you. You know, you can see ये वाला जो representation है in the form of conceptual model. You can use this also for study. कि ये जो diagrammatic presentation है इसको भी आप अपनी study में आराम से use कर सकते हैं. That kind of chart you can prepare. So I think it is enough from my side. We have done almost. So thank you so much. Now you can ask the question. If you are having any kind of the question, you can ask me. So please let me know. And Prakriti ma'am, please don't forget कि आज अपने को like एक pic लेना है ना? Video, we must be on video by everyone. Before this, just let me know your question and just give the feedback. Is it okay with you? Do you think that today's session is also important, or you think that yesterday was good but today's session is not so good for you? Please give me your like frank feedback and correct feedback only. Ma'am, really good. Thank you so much, Shilpa ma'am. Wonderful information. Very nice, effective. Thank you so much. So, dear participant, if you have any query, you can ask. Hello. हाँ Shilpa ma'am, good evening ma'am. Yes, please. Good question. evening, ma'am. Ma'am, how are you? Absolutely fine ma'am. Ma'am, actually इतनी नई चीज़ें मुझे पता चली इन लास्ट 2 डेज़ में, मतलब मैंने इमेजिन नहीं कर सकती मुझे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली है. मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ऐसी वर्कशॉप्स एफडीपी और फ्यूचर में कीजिए मैम. रियली इफेक्टिव, आई एम टेलिंग यू. Thank you so much. Definitely ये group as it is रहेगा. Whatever I'm going to planning for the next, definitely I'll share with all of you ताकि जो भी market में updated है हम उसके साथ carry on कर सकें. Right, ma'am? Can we get a PDF link for your workshop of future events? Yeah, definitely I'll share with you. Just give me a day. I'll prepare that kind of content for you and we'll share with you. Yes, ma'am. We actually need the content of yours, seriously. And thank you so much, ma'am. Thank you so much. My pleasure, completely my pleasure, ma'am. Thank you so much for this positive feedback. It actually motivate me to
create something new for you always, कि लगे रहना, महीनों मेहनत करके कुछ कंटेंट प्रिपेयर करना, आप लोगों को डिलीवर करना, that is my most loving task. So thank you so much, Janki ma'am. Thank you, Ram Rudra ji. Thank you so much. Anybody else having any kind of the question and wants to share feedback? किरण मैम, जी मैम. जो हम 5 पेपर्स से जो हमने वेरिएबल्स एक्सट्रैक्ट किए थे, उन वेरिएबल्स को हमको चैट जीपीटी को देखकर फिर हमसे उनको मदमेट कोड और वो सब जनरेट करवाना है, राइट? जब हम बिल्कुल मैम, उसकी बिल्कुल। बात करते हैं Yes. ड्रॉ आईओ की, राइट? Only Draw.io, variables yes. we have to give to the chat GPT and ask chat GPT to Create give the us mermaid code. Yes. yes. Okay. That mermaid code we have to paste there. Okay. यस fine. मैम, अगर आप अपना ही कमांड उसको दे रहे हैं, आपकी वेरिएबल जो सिलेक्टेड है वो आप उसको चैट जीपीटी को बनाकर दे करके और ये कह रहे हैं कि जस्ट क्रिएट द मरमेड कोड फॉर ड्रो.io, तो उसे समझ में आ जाएगा कि उसके अपने ही वेरिएबल है और ड्रो.io के लिए उसको खाली कोड बनाना है. व्हाई कोड? बिकॉज वी पीपल आर नॉट सो मच प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर साइंस काइंड ऑफ द बैकग्राउंड, कि कोडिंग करना, फिर आप कनेक्टिविटी बिठाना कि एरो किधर जाएगा, किससे कनेक्ट होगा, इतना सारा इंटेलिजेंसी हमें नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज वी नॉट बिलोंग्स टू दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड. तो वहां से कोड को लेकर के ड्रो.io को यूज करके वहां से जो आप इमेज को क्रिएट करते हैं उसमें चाहे तो आप और कुछ चेंजेस कर सकते हैं. वो फ्लेक्सिबल टूल है. फिर उसमें से जो ड्रो.io का आपका कंसेप्चुअल मॉडल निकलता है उसको आराम से यूज कर लीजिए, वो कहीं प्लेगरिज्म में नहीं आएगा. आप स्कूपर्स में डालिए, वेब ऑफ साइंस में डालिए, एबीडीसी में डालिए, Q1, Q3, Q4, एनी काइंड ऑफ द जर्नल, डेफिनेटली दे विल एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंसेप्चुअल मॉडल बिल्डिंग. और ये आज का ट्रेंड भी है, काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं. So, Kiran, I have Yes, a question. Mohit ji, yes, ask the question. हाँ, Jyoti ma'am, please welcome. It might sound a little vague, but in just in connection to what ma'am just before me asked, I don't recall her name. You said कि Yes, ma'am. 5 जैसे papers निकाले थे on one single topic. एक टॉपिक Yes, में ma'am. 5 पेपर्स आपने निकाले और उसके बाद उसके वेरिएबल्स को चैट जीपीटी में आपने डाला. तो मेरा एक सवाल ये है कि ये 5 पेपर्स के ईच पेपर का वेरिएबल निकाल के आप चैट जीपीटी में फीड करोगे, और is there a way that we get to know from all 5 papers in one single go the repetitive variables in terms of independent, dependent, mediating, moderating? Is there a way या Yes. हर आर्टिकल का ये सेपरेट एक्सरसाइज करना पड़ेगा? नो मैम, आपने शायद वो बिगनिंग का थोड़ा सा मिस कर दिया मैम. उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको मोस्ट रेलेवेंट अपने 2 पेपर्स, 3 पेपर, 5 और 10 पेपर्स आपको अपना आइडेंटिफाई करना है, जो कि आपको लगता है कि आपकी स्टडी एरिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, राइट? Correct. उनको आइडेंटिफाई करने के बाद अब हर एक पेपर को पढ़ के कॉमन वेरिएबल्स को निकालना इट्स टू टफ. तो हम क्या करेंगे, उन सारे 5 पेपर्स को या 10 पेपर्स को चैट जीपीटी को अपलोड करेंगे और उसको कमांड देंगे कि नाउ आइडेंटिफाई ऑल द वेरिएबल रिलेटेड टू माय स्टडी. तो हमने उसको कमांड दिया कि तुम मुझे ऑल काइंड ऑफ वेरिएबल दे दो, रिसर्च गैप दे दो और थ्योरीज दे दो, क्योंकि किसी भी मॉडल बिल्डिंग के लिए तीनों कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियसली थ्योरी कौन सी थी, रिसर्च गैप क्या था और वेरिएबल्स क्या थे. वो आपको चैट जीपीटी करके देगा. हर पेपर को रीड आउट करके आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल है, राइट? जैसे ही चैट जीपीटी को आप अपलोड करके आप देंगे तो वो आपको मोस्ट रेलेवेंट पेपर से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके देगा. वो जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से आप सिर्फ उन 4 वेरिएबल को लेकर फर्दर कमांड देंगे चैट जीपीटी इमेज क्रिएटर को कि नाउ क्रिएट द कॉन्सेप्चुअल मॉडल बिल्डिंग फॉर मी. तो वो आपको इमेजेस बना के देगा और फिर उसी को आप कमांड देंगे कि नाउ क्रिएट द मरमेड कोड फॉर दीज सेलेक्टेड वेरिएबल. आप अपना ह्यूमन जजमेंट वहां पर दे करके वेरिएबल की स्क्रूटनी कर लीजिए, ये चाहिए नहीं चाहिए. इस तरीके से आप स्क्रूटनी करके इन वेरिएबल का लिस्ट बना करके नाउ अपलोड टू अगेन चैट जीपीटी एंड आस्क टू प्रिपेयर द मरमेड कोड. फिर उसको आप ड्रो.io में यूज कीजिए. तो अल्टीमेटली आप एक साथ ही पेपर अपलोड कर रहे हैं, एक एक पेपर नहीं कर रहे हैं. Got it. So Thank much, you. Neela Thank ma'am. you. Most welcome, ma'am. Jyoti ma'am, most welcome. Anybody else having any doubt? Either I think कि हाँ मैंने